सोनिया गांधी को आप देख रहे थे सीधे, और फिलहाल शेषाद्रिचारी जी भी मौजूद हैं, विवेक काटजू जी भी हैं। शेषाद्रिचारी जी, जैसे बात हो रही थी कि जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, उसको फोकस करके ये भाषण था और इसलिए हाई पॉलिसीज़ का जिक्र कम किया गया। लेकिन जो जन भागीदारिता की उन्होंने बात की है, mygov.in काफ़ी कामयाब रहा है, ये कई रिपोर्ट्स में इसके बारे में सुन रही थी। आपको लगता है कि 12,000 कमेंट्स आए हैं जब प्रधानमंत्री ने ये कहा कि आप मुझे भेजिए कि मुझे किन चीज़ों पर बात करनी चाहिए, क्या ऐसा कोई सरकार के पास वाकई मैकेनिज्म है जो एक एक आदमी के जो है कमेंट्स को पढ़ता है? कितने लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें तो लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन बाकी क्या ऐसा कोई प्रॉपर मैकेनिज्म है? नहीं, आपको आश्चर्य लगेगा लेकिन है। ये हमने चुनाव के दौरान भी देखा है कि रात को करीब 2 बजे हमारे पास मैसेजेस आते थे कि इस भाषण के बारे में संदर्भ चाहिए और संदर्भ भेज देते थे, और 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी के ईमेल से हमें मैसेज आता था कि धन्यवाद या और कुछ मांगते थे। मतलब हमने जो 2 बजे रात को भेजा वो उन्होंने पढ़ भी लिया और 4 बजे उसका उत्तर भी देना। अगर ये एक व्यक्ति ये कर सकता है चुनाव के दौरान, तो मुझे लगता है कि now with this huge this kind of machinery huge behind him, machinery, it should not be a और problem. देखिए पिछले 10-15 सालों में हमारा जो एक टेक्नोलॉजिकल पावर है और टेक्नोलॉजिकल इनपुट नॉलेज गैदरिंग और रिएक्टिव मैकेनिज्म जो है वो इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ And गया he है। is one prime minister who uses it to the great extent. हाँ, ये यूज करना। He has मुझे याद है नरसिम्हा राव जी थे। नरसिम्हा राव जी बस वो कोई टेक्नोलॉजी से इतना technology was not so advanced when he was no, there. he was, but he had excellent rapport with the technology. That's true, but you know the technology actually Kalyani, actually much before this in the last I think about 2-3 weeks back or a month back, the Prime Minister had invited suggestions from people saying that what would you like to listen on from me on the Independence Day speech. You think that several of those elements have been brought in today, and is that the reason that some of the issues which we all, some of us wanted to hear from, he did not mention it? You think that this is the response which he has got from people which he has been using? Well, you see, as far as I know, every Prime Minister treats his Independence Day speech very, very important. So, a lot of thought goes into what he should speak, what he should not speak. So, it's quite possible that he might have received suggestions which are of importance to him, which are of importance to his party also, which he had announced today. But otherwise, I think right from Nehru's time, you just see every Prime Minister makes very, very. I remember seeing Atalji also, and all of them, somehow or other, they think that Independence Day speech is where they just show off their oratory and also their vision and also their inspiration. So I think Modi ji has done all these three things in this Independence Day speech. And also a connect with the people. That's right. This Prime Minister especially, he is also a very good orator, as good a orator as Atal Bihari Vajpayee was. So this communication, the system of communication and the effectiveness with which you communicate with the people also matters the most. And I think, I mean, in a scale of 1 to 10, this Prime Minister gets all the 10 marks as far as his communication skills are डॉक्टर चारी, क्योंकि पिछले भाषण का रिपोर्ट कार्ड भी देते जा रहे थे, लगातार आंकड़ों के साथ उसको सपोर्ट कर रहे थे प्रधानमंत्री। प्लानिंग कमीशन को लेकर पिछली बार एक बड़ा हिस्सा उन्होंने समर्पित किया था अपने भाषण का, लेकिन इस बार लोग सोच रहे थे कि प्लानिंग कमीशन से जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है नीति आयोग तक, उसको नहीं छुआ गया। नहीं, देखिए वो जैसे पहले भी कहा कि जो बातें, जिन बातों का उल्लेख कॉमन मैन को टच करता है, आम आदमी को टच करता है, जनता, लेकिन ये नीति आयोग की योजनाएं तो आम आदमी को ही टच करेंगे। नीति आयोग की योजनाएं उन्होंने इस पहले ही विषय में कहा। देखिए एम्फेसिस था पॉवर्टी एलिवेशन का। गरीबी बचाओ का स्लोगन कब का है? 1971 का है, श्रीमती इंदिरा गांधी का। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा। Is it also an indication that as far as Niti Aayog is concerned, the one which Arfa is asking, that there is a lack of clarity in it? So he couldn't have said. सवाल क्लैरिटी का नहीं है। सवाल इनका जो एम्फेसिस रहा होगा, प्राइम मिनिस्टर का जो एम्फेसिस अकॉर्डिंग टू मी इज ऑन इम्प्लीमेंटेशन। उन्होंने ये भी कहा कि योजनाएं
अलग बात है, योजना देना एक अलग बात है, लेकिन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन पर और हमें इस ज़्यादा दौरान ध्यान पश्चिम देना बंगाल की होगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी दिख गई हैं, नीतीश कुमार के अलावा दूसरे मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं और ये भी पूर्व की तरफ ही जा रहे हैं। And you know, the elections in West Bengal is much ahead. But Mr. जी हाँ, तो राज्यसभा टेलीविजन पर कोशिश ये है कि आपको सिर्फ दिल्ली से नहीं बल्कि पूरे देश में जो है वो आज आज़ादी के मौके पर, आज़ादी दिवस के मौके पर क्या कुछ हो रहा है ये हम दिखाएं, अलग अलग राज्यों में क्या कुछ हो रहा है ये दिखाने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा कि हम आकलन कर रहे हैं प्रधानमंत्री के भाषण का, क्या कुछ उन्होंने कहा है। और गिरीश जिक्र कर रहे थे कि क्या वाकई प्रधानमंत्री ने इसलिए नहीं छुआ नीति आयोग को कि उसको लेकर अभी एक क्लैरिटी नहीं है, अभी भी लगता है वर्क इन प्रोग्रेस है। नहीं, देखिए नीति आयोग का, जब से नीति आयोग प्लानिंग कमीशन बना तब से लेकर वो इट इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस। योर प्लानिंग कैन नेवर स्टॉप। आप कभी ये नहीं कह सकते हैं कि आज हमारा प्लानिंग खत्म हो गया, अभी इम्प्लीमेंटेशन शुरू करते हैं। परंतु उनका जो आग्रह था प्रधानमंत्री का कि योजनाएं बनाना केवल काफ़ी नहीं है, उनका कार्यान्वयन ये बहुत आवश्यक है। इसीलिए उन्होंने जोर दिया उसके इम्प्लीमेंटेशन, कार्यान्वयन पर। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन्होंने उल्लेख भी किया कि हम करेंगे, होने देंगे, सोचेंगे, ये इस सरकार की नीति नहीं है। ये सरकार काम करने वाली सरकार है और हमने करके दिखाया। इसीलिए उन्होंने उसका उल्लेख किया, 100 दिनों में 1 करोड़ अकाउंट का उल्लेख किया उन्होंने। इसीलिए मुझे लगता है कि लोगों को, आप उसको प्लानिंग कमीशन कहते हैं या नीति आयोग कहते हैं, नीति आयोग के कितने सदस्य हैं, वो रोज़ ऑफिस में आते हैं कि नहीं आते हैं, वो क्या नीतियाँ बनाती हैं, इसका कोई चिंता नहीं है। लोग चाहते हैं कि व्हाट इज ऑन द टेबल, कार्यान्वयन क्या हुआ, इस पर लोगों का नज़र है। और लोगों का पीपल्स मेमोरी इज़ वेरी शॉर्ट, इसीलिए 1 साल में लोग भूल सकते हैं। इसीलिए उन्होंने इस बात पर उल्लेख दिया। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि प्लानिंग कमीशन करे या न करे, देश के प्रत्येक जनता को और सभी डिपार्टमेंट्स को, सरकारी दफ्तरों को और सरकारी अफसरों को लेकर, पार्टियों को, दलों को, सभी लोगों को 2022 की चिंता करनी चाहिए। और उसका उल्लेख उन्होंने आज़ादी के साथ जोड़ा। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हुए, परंतु स्वतंत्रता की बात जो है वो 1857 से शुरू हुआ। यानी जब 1857 में हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो आज से हम 2022 की बात क्यों ना कर सकते हैं। Okay, Mr. Chari, another, the burning issue, in fact, in the last few months in this country was the OROP, the one rank, one pension issue. Yes. But, there were a lot of expectation from the armed forces also that today, there will be some kind of an announcement. You think that the Prime Minister has disappointed the armed forces today? No, I don't think there is disappointment from that point of view. Yes, there is a the speed with which this whole program was to be implemented seems to be missing. But the most important thing that he mentioned was that in principle, he says that in principle we have accepted this. And this is an issue that has been lingering on for almost 25-30 years. And there are so many corners to be blunted in this particular issue. Tomorrow the government announces something and then, it's a huge lot of army. Absolutely. Somebody goes to court and goes against this Kanjo, war. how do you What look do you at do? this? Look, I think there is restlessness on this matter now developing within certainly the retired armed forces community, but that would impact on the armed forces too. It's a difficult issue. But it needs to be addressed and addressed swiftly. The Prime Minister did well to reiterate his government's commitment in principle to OROP.
but he did not prescribe any time frame. He merely said that Exactly, the as soon talks as are possible. moving in the right direction and that he hopes that That it thing- would So it should not be. result in a good resolution. I would certainly hope that this matter is addressed with all the dispatch that is necessary, and that the ugly scenes that were witnessed yesterday are never seen by the nation again. Absolutely. Kalyani? Kalyani, this is one thing. And the second thing is, right at the beginning of his speech, he made two interesting observations. He spoke about fundamentalism, he spoke about casteism. He did not elaborate it much, but, he wanted to make a point. What do you think that, what was his motive? What was the intention behind that? Well, you see, country at large also he must have been addressing that. Because there is fundamentalism, there is casteism. You just cannot get away from this. But in my opinion, these two things particularly are very important for Bihar. Bihar elections are in another 2 months. Right. There you have the communalism and you have a casteism. In fact, the votes are, cast only on these two issues. And development is now coming up anyway. So this is one reason why probably he's trying to tell the electorate that please stay away from casteism and communalism. Okay. Where- Yes, Mr. Achikaj. Look, I think if this was refracted as an election speech, then he would have focused on this not in passing, but he would have elaborated on this. इसके विकास का संकल्प किया है उनकी बातचीत खत्म हो चुकी केवल है और संकल्प लगातार इस नहीं पर चर्चा किया है। करें। मिस्टर काजू, आप क्या कह रहे थे? एक साल में I was saying that he would have really expanded on this, not only in Bihar, he would have expanded it from the Red Fort itself. He said it in passing, but he made a very, very important point, because this is the criticism which is being leveled against him, that he is not speaking enough against communal forces. But he said this, that we must, the English translation that I have before me is, he said, be it the poison of casteism or the fire of communalism, we have to end all this with development. उन्होंने कहा कि जो जुनून है सांप्रदायिकता का, इसको उसको खत्म खत्म करना करना होगा और टूटने से बचाना होगा। लेकिन यहाँ पर कोशिश ये हो रही है बताने की कि शायद इन्हें इस बात पर थोड़ा और जोर देना चाहिए था। बाकी जो चीज़ों पे, जैसे स्वच्छता पर उन्होंने जोर दिया, काफ़ी बड़ा अपने भाषण का हिस्सा No, but करप्शन को लेकर। actually, that's the point, He gave a lot of importance to corruption, to Swachh Bharat Abhiyan, farmers' issues. But this issue was just mentioned in passing. If you notice one thing, there have been number of surveys by number of other agencies also. Issues that touch the common man, where the majority of the common men feel are these issues. They are day-to-day life issues. Of course, communal riots or casteism is an issue, no doubt. But casteism is an issue where the government cannot do much. It is the people, the society, the NGOs, the social organizations are what they have to do. लेकिन पॉलिटिकल विल पावर सरकार की तरफ से नजर आएगी। कल ही Political will power, we have had governments with कल ही दलित मजदूर को मजदूरी मांगने and पर even this government से मार also दिया has गया। political will. But the same political will, the emphasis is on development. Development is the medicine that will cure many of the ills. And one aspect that has really kept us down from development is the issue of corruption. Corruption affects national security, corruption affects the society, corruption affects everybody. Absolutely. 1% or less than 1% of the Okay, population may be I- involved in corruption, but 100% of the population gets affected by it. I have one thought which has come to me for many months now, which is that it is necessary to join casteism with Swachh Bharat. We cannot have Swachh Bharat if we believe that the cleanliness of India is the job only of certain castes. I think the evil of casteism has to be correlated with Swachh Bharat. एल.के. अडवाणी That was Mr. L.K. Advani. L.K. Advani at his residence, having his own flag hoisting ceremony. Yes, Ms. विवेक काजू जी कह रहे थे कि सफाई कर्मचारियों को भी जोड़ना होगा अगर हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर स्कूल में टॉयलेट बने तो हमें स्कूल में Please continue.
हमें स्कूली बच्चों को ये सिखाना होगा कि एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो कि महिलाओं को लेकर है, खासकर पिछले भाषण में प्रधानमंत्री के 2014 में हमने देखा कि काफ़ी जोर देकर, काफ़ी एम्फेसिस के साथ उसको कहा गया था। कल्याणी शंकर, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ इस सवाल को लेकर कि ये बताइए कि पिछली बार काफ़ी जोर देकर इस बात को कहा गया था कि आप बेटों से पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, बेटियों से पूछते हैं तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन बेटों पे बात नहीं होती है। किस तरह से जो है पूरे कल्चर में, संस्कृति में फ़र्क लाने की ज़रूरत है। काफ़ी जोर इस बात पे इस वजह से भी दिया गया था चूँकि जाहिर है सरकार नहीं थी और पहला भाषण था, लेकिन इस बार महिलाओं को लेकर बहुत जोर हमें नहीं नज़र आया। नहीं, देखिए महिलाओं को लेके बात तो हुई, जो देश की बेटियां उन्होंने कहा। स्टार्टअप स्टैंड अप उसमें तो महिलाओं को लेके आया है, लेकिन जैसा पिछले साल किया वैसा उतने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और दूसरा चीज़, अभी सभी पॉलिटिकल पार्टीज महिलाएं का एम्पावरमेंट के लिए बात हो रही है, लेकिन अभी 33% रिजर्वेशन फॉर वीमेन उसको तो छोड़ ही दिया। नो पार्टी इज टॉकिंग अबाउट इट दीज डेज। तो इसलिए महिला आरक्षण को और एम्पावरमेंट को बात करना हो तो उनको भी तो लेके आना चाहिए, वो सभी पार्टियां अभी छोड़ दिया। यानी आप ये कह रहे हैं कि वो व्यापार उद्योगपति तो बनेंगी महिलाएं, जिस तरह से बैंकों में लोन देने की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि हर बैंक जो है उद्योगपति बनाए, उसमें महिलाओं का जिक्र है, लेकिन राजनीतिक जो आरक्षण की बात हो रही थी वो नहीं हुई है। That has been an issue which has been given up by for quite some All time parties. now. For quite some time. Another thing, I want all three of you to respond to this. Mr. Sheshadri Chari, unlike the last speech in 2014, the first speech at the Red Fort, this speech doesn't have any big announcements. It was more of a report, giving of a report card and looking, forward, but there are no big announcements. You think it's deliberate? Yeah, and I think it's a good thing also. I mean, there have been many earlier speeches also where major announcements were not made. We should not expect the Prime Minister's speech like 26 January, 15th August, or I would even extend, even budget speeches have become announcement speeches. I think this trend, if it goes away, it is good. It's good. I You mean, think it's only good? probably the only two announcements, if at all Yes. you can take it as that, was But changing of the name about of the changing of Agriculture the Ministry to adding and also this idea of 2022. 2022. Otherwise, Mr. Kadjo, no, look, it depends on how you define big announcements. see, people have got used to certain big announcements being made by the Prime Minister from the Red Fort. If this has been, through decades, we have seen everybody, media also anticipates certain announcements to be made. Like today, there were expectations that there will be some big insurance scheme for farmers which will be announced. These are the kind of things, these are expectations of the people, and I do you think that these expectations are not valid? No, I think administration is a process. It is a process for betterment. If by his own standards, I'm talking by his own standards, like last year. No, but this is precisely what I am coming to. I think the two things that he said, Startup India and Stand Up India, are very major things. If you These look are at these it. are What not is he- new. These are not No, new programs. What is he saying?
He is saying that India must become a nation of entrepreneurs. That's right. This is the point that That's that, right. that But he these are stressed. not. These are not. No other prime minister has said this as specifically. as far as लेकिन As दर्शन far के as स्तर पर तो slogans अच्छा are है वो concerned, बात करें, स्लोगन हो सकता है, दर्शन हो सकता है, लेकिन योजना तो नहीं है ये। नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने योजना कही, उन्होंने कहा हर बैंक अगर दे अगर Kalyani? एक को बनाए Sorry, वो Kalyani. है। Kalyani, how would you look at it? Actually, you know, if you ask me, in my opinion, Prime Minister has been very restrained in not announcing very big Exactly. announcements. Because last year he had announced 2-3 big things, and they are just, some of them have taken off, some of them have not taken off. So probably he wants to complete all that, and maybe next year he would come up with the new schemes or say that how much he has done, his report card, all that. So it has been a very conscious and careful decision not to go for any big announcement this और time. एक और चीज है, अगर वो अनाउंसमेंट ही करते रहे तो वो उनका Yeah. क्रिटिसिज्म ये होगा कि अनाउंस करते हैं No, no, तो I am not- कार्यान्वित नहीं No, no, कर it's रहे not a हैं। question of- ये भी तो है। It's not a question of, you know, but people have got used to it. And, you know, it's a good thing actually because, because I as, think as, it's a good thing. as you were pointing out, general budget, railway budgets have become just announcements. And, you know, and the question, that is why in the very first emphasis that he made, immediately in the operative part of the speech, he said that it's not the schemes that are important, but how we have been implementing it is important. शिक्षा देशारी and एक that is बहुत where our महत्वपूर्ण बात emphasis lies. जो मैं लगातार पूछना चाह रही थी वो है संसद आदर्श ग्राम योजना को लेकर। पिछली बार इसको भी काफ़ी एम्फेसिस दिया गया था कि किस तरह से पूरा एक मेकओवर हो सकता है ग्रामीण भारत का, जिसके बारे में अक्सर प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं। लेकिन जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं वो बता रही हैं कि अभी भी इस पर 1 साल गुजर जाने के बाद बहुत खास काम नहीं हो पाया है, काफ़ी धीमे धीमे काम चल रहा है और नतीजे ज़मीन पर नहीं आए हैं। देखिए, इसमें दो तीन विषय है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े बड़े स्कीम्स होते हैं या ग्राम तक पहुंचने की जो विषय होते हैं, उसमें एक बात होती है इंडिविजुअल्स, मतलब जो लोकल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी एक बहुत बड़ा एक अहम भूमिका होती है। और दूसरी बात होती है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट गवर्नमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी गांव तक पहुंचना चाहते हैं, केंद्र सीधा उस गांव में पहुंचे और स्टेट ओवर द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इट गोज अगेंस्ट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ दिस फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डायरेक्टली गांव तक जाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स के अलावा कोई मेथडोलॉजी भी नहीं है। और इस बात का भी उन्होंने उल्लेख किया। इसलिए उन्होंने ये कहा, फेडरलिज्म का जिक्र करते हैं। देखिए लास्ट स्पीच में इफ यू नोटिस, उन्होंने कहा कि मेरी टीम इंडिया में मेरे देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मेरे टीम इंडिया है। ये उन्होंने लास्ट टाइम कहा था। इस बार now he उन्होंने has expanded the team India to 125 का, crore people. यानी इस 1 साल में probably ये realized कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में It's not it is just- very difficult to take all the states, the chief ministers, the establishments in those places and the political parties that represent that particular government. क्योंकि शहर इन जाते सभी ये लोगों बचाना को भी साथ ले महत्वपूर्ण जाने है। से ज़्यादा आसान है इस देश के 125 करोड़ लोगों को साथ में जी ले हाँ, जाना। ये बहुत इसीलिए महत्वपूर्ण उन्होंने बात है। पूरी दुनिया को, पूरे पूरे देश को, देशवासियों yes, को Mr. टीम बना Kanji. अब दिया। तक 8 जो है गांव, वो 8 एमपीज के जरिए अभी तक सिर्फ गोद लिए जा सके हैं, जिनकी तादाद बड़ी हो सकती थी, ज्यादा हो सकती थी, और खासकर काफी एम्बिशियस प्लान रहा है ये प्रधानमंत्री का। एमपी लैड फंड भी यही है। इस आप उसमें अगर देखेंगे कि कितने जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं जिन्होंने अपने को, उनको दिया गया पैसा जो एमपी लैड फंड है उसका उपयोग किया, यानी उसका भी मुझे लगता है इम्प्लीमेंटेशन 40-50% से ज़्यादा नहीं है, किसी का एवरेज होगा, किसी ने 80% किया होगा, किसी ने 20% किया होगा। ये जो बातें हैं ये डिपेंड करता है 2 लोगों पर, एक उस पर्टिकुलर व्यक्ति पर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर और उसकी कार्यशैली और उसकी क्षमता पर, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट पर। ये 2 बातों का जब तक कोई भी सरकार आगे न जा पाए तब तक इन बातों को 1 साल के अंदर Country you wanted to intervene. Look, I think the Prime Minister has focused on work culture. Now, He spoke about work culture, No, how it is changing. let me just elaborate. I think as far as the central government is concerned, that is directly under him. And that work culture, he can transform through personal intervention. Now, the work culture of the states and the local bodies, he cannot directly influence. He can only give a margdarshan, as it is said. In fact, he mentioned about it. He wanted the state governments to, you know, get involved in this and things. I'm sure he is quite aware that these are things which are not, it is not in his hands. But anyway, it has been a good discussion. We will
continue to look at what he has done, what the Prime Minister has said today. But as far as today's discussion is concerned on this issue, we will end it here. Thanks to all the guests who have been participating here. Arfa? जी हाँ, सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम इसी के साथ, और फिलहाल एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद। नमस्कार। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। जश्न आज़ादी में सराबोर है आज पूरा देश सुबह से ही, और हमने देखा आपसे कुछ देर पहले लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया। कई योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया, कई बातों का जिक्र किया। भविष्य क्या होगा, आने वाले समय किस तरह का रहेगा, विकास के लिहाज से, सरकार के लिहाज से, इन तमाम चीज़ों को साझा किया प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में। इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी फ्रैंक और मैं हूं दीपक डोभाल। Indeed, Deepak, it was a day filled with patriotic fervor there at the Red Fort. It's that time of the year once again where over 1.2 billion Indians stand together as one and celebrate Independence Day. It's the 69th edition of the Independence Day this year, and a grand ceremony was witnessed at the Red Fort filled with patriotic fervor. Let's now take a look at the headlines of the top of this hour. Prime Minister Narendra Modi addresses the nation from the ramparts of the Red Fort as the nation celebrates the 68th anniversary of its independence. Prime Minister lists out the government's achievements in the last 1 year, counts Swachh Bharat Abhiyan and Jan Dhan Yojana as the most successful. No major announcements on the One Rank One Pension scheme. Prime Minister says talks with all stakeholders underway to find the best way out for its implementation. Prime Minister reaches out to farmers and labourers, lists out schemes specific to them, also promises to empower them further. And the 69th Independence Day celebrated across the country with patriotic fervour, the national flag hoisted in all state capitals. Well, we just saw a speech delivered by the Prime Minister Narendra Modi addressing the nation from the ramparts of the Red Fort a short while ago. It was an 85-minute-long speech where he addressed the nation. He, of course, spoke about several issues. One of them, of course, was about the bank account openings of several of the poor people of India, where he said that several bank accounts were opened with a zero balance account, and that was one of the achievements that he listed. He also said that 125 crore strong Team India is going to take the nation forward in the days to come, and he's very happy with what has happened in the last 1 year or so. Several controversial issues, of course, were not spoken at length, but touched upon some of those topics were the issue of black money and also the One Rank One Pension scheme, for which several ex-servicemen have been protesting at Jantar Mantar in the national capital. We've seen a 60-day-long protest by them. We saw an almost eviction yesterday as well, but that was later on subsided. And as far as the speech itself is concerned, it was an 85-minute-long speech of the Prime Minister who addressed the nation. And we also saw a 21 gunshot salute that was presented by the armed forces. There you have it, of course, these visuals coming to you from the Red Fort from earlier today, where the Prime Minister was seen addressing the nation. It was an 85-minute-long address there at the Red Fort. Well, as the country celebrates the 69th Independence Day, Prime Minister Narendra Modi talked about one of the biggest strengths of the country, its unity, saying that there was no place for divisive forces. The Prime Minister said that India's biggest strength was its unity, simplicity and brotherhood. नित्य नूतन संकल्पों के साथ यह देश आज यहां पहुंचा है। हमारी एकता, हमारी सरलता, हमारा भाईचारा, हमारा सद्भाव, ये हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। इस पूंजी को कभी दाग नहीं लगना चाहिए, कभी उसे चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर देश की एकता बिखर जाए तो सपने भी चूर चूर हो जाते हैं। और इसलिए चाहे जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जुनून हो,
उसे हमें किसी भी रूप में जगह नहीं देनी है, पनपने नहीं देना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश से आज मुखातिब हुए, उनके भाषण के अंश हम आपको लगातार सुनवाते रहेंगे। क्या क्या उन्होंने कहा, इसका जिस्ट भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम रुख करेंगे अपने संवाददाता प्रणव गोस्वामी का, जो कि छत्रसाल स्टेडियम से इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। प्रणव, आप वहाँ पर हैं, दिल्ली सरकार का वहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, क्या कुछ खास रहा आज? दिल्ली ने किस तरह से स्वतंत्रता दिवस मनाया? देखिए, अभी थोड़ी देर के बाद दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर जो स्वतंत्रता दिवस जो समारोह है उस कार्यक्रम में यहाँ पर आएंगे मुख्य अतिथि के तौर पर। उसके बाद वो ध्वजारोहण करेंगे। उससे पहले मैं अगर आपको दिखाऊं पूरी तरह से ये जो पूरा जो यहाँ का माहौल है वो किस तरह से सराबोर है, देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है पूरा कार्यक्रम। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर तमाम रंग दिख रहे हैं, भारत के रंग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हजारों स्कूली छात्र छात्राएं हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर परेड हो रही है और इस पूरे कार्यक्रम, पूरे आयोजन के दौरान जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है, जाहिर सी बात है कि वो एक मौका है जबकि सबके भीतर जिस तरह का जो एक जज्बा है, देश प्रेम की जो एक ज्योति है वो किस तरह से यहाँ पर जलती है। और यही सारी चीजें, यही सारा दृश्य बयान करने के लिए काफी है कि इस पूरी कार्यक्रम में एक जो उत्साह है, जो उमंग है, और उसमें भाग लेने के लिए, स्वतंत्रता दिवस के इस समारोह में भाग लेने के लिए हर किसी के भीतर एक अलग किस्म की उमंग है। और यही सारा जो नजारा है वो इन सब भावनाओं को बयान करने के लिए काफी है। और आप जैसा बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री केजरीवाल कुछ देर बाद वहां पर पहुंचेंगे और फ्लैग होस्ट करेंगे। अक्सर प्रणव, स्वतंत्रता दिवस या इस तरह के बड़े मौक़ों पर उम्मीद की जाती है कि राज्य के मुख्यमंत्री कुछ सौगात लेकर आएँ। क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? आपकी बात हुई होगी आपकी आम लोगों से, क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं आज की केजरीवाल कुछ अनाउंसमेंट करें, कुछ बोलें, कुछ चीज़ें साझा करें लोगों के साथ? जी देखिए, मुख्यमंत्री केजरीवाल यहाँ पर आएंगे, जाहिर सी बात है वहाँ पर इनकी स्पीच भी होगी। लेकिन क्योंकि आज का मौका है, एक स्वतंत्रता दिवस समारोह यहाँ पर है, तो ये कहना शायद कि जो काफ़ी सारी जो पॉपुलर स्कीम्स है उसकी घोषणा करेंगे, ऐसा तो नहीं लगता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस पूरे मौके में वो अपनी भावनाएं ज़रूर रखेंगे। और ख़ासतौर पर जो हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से केजरीवाल और जो केंद्र के बीच में जिस तरह के रिश्ते रहे हैं उसमें कभी कभी काफ़ी मतभेद भी रहे। उन सब को लेकर जाहिर सी बात है कि जब भी मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे उनको लेकर अपनी कोई बात कहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जब ये लोकतंत्र की मजबूती का दिन भी कहा जा सकता है। ये एक ऐसा दिन है जब देश ने आज़ादी हासिल की थी, तो जाहिर सी बात है ये एक ऐसा मंच नहीं है जहाँ पर कि किसी भी तरह के इस तरह के मतभेद की बात सामने आए। ये एक ऐसा मौका है कि जब पूरा देश, पूरा संघ, तमाम राज्य, तमाम देश के लोग वो सब एक है और एक ही भावना से ओतप्रोत दिखाई देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव, आप बने रहिए, वक्त पर लौटेंगे आपके पास। फिलहाल हम वापस रुख करेंगे लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया है, जो देश के नाम संबोधन किया है, उसकी ओर हम आपको लगातार उसके अंश बाद आपके बीच में लाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि दिल्ली की बात हो रही थी अभी प्रणव से, और मुख्यमंत्री केजरीवाल अब से कुछ देर वहाँ पहुँचने वाले हैं, लिहाजा केजरीवाल की बात कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर क्या कहा, ये सुन लीजिए। पैसे की कमी नहीं है, अगर ईमानदारी से होगा तो इसी पैसे में खूब सारे काम किए जा सकते हैं। बस ये सब हम अकेले नहीं कर सकते, आप सब लोगों का साथ चाहिए। कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग अगर इकट्ठे हो जाएं तो हम दिल्ली का 5 साल के अंदर नक्शा बदल के रख देंगे। 5 साल के अंदर नक्शा बदल के रख देंगे, ये दावा है अरविंद केजरीवाल का। फिलहाल प्रधानमंत्री ने आज क्या कुछ कहा, उसकी ओर रुख करते हैं। लाल किला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने काला धन के लिए कड़े कानून बनाए और इन कानूनों की वजह से 6500 करोड़ रुपए देश पे वापस आए हैं। ये काला धन का हमने कानून बनाया है, उसके कारण बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोगों को मुसीबत दिखाई दे रही है। काला धन थोड़ा डाइल्यूट हो, थोड़े नियमों में छूट आ जाए, इसके लिए हमारे तक संदेश पहुंचाए जाते हैं। मैं टीम इंडिया 125 करोड़ देशवासी, मैं आज कहना चाहता हूं
वो साइड इफेक्ट की तैयारी के साथ भी काले धन के खिलाफ कठोरता से काम लेने की दिशा में हम आगे बढ़े और बढ़ेंगे। और इतना तो हो गया है, काला धन वापस लाने की एक लंबी प्रक्रिया है, चल रही है, लेकिन इतना तो हो गया है कि अब कोई काला धन बाहर भेजने की हिम्मत नहीं करता है। ये तो फायदा हुआ ही हुआ, कोई माने या न माने। इतना ही नहीं, अभी कुछ दिनों में जब ये समय दिया है कि आप अपना घोषित कर सकते हो, मैं आज कह सकता हूं करीब 6500 करोड़ रुपया अघोषित आय लोगों ने आकर के घोषित सामने से करना शुरू कर दिया। ये पैसा हिंदुस्तान की तिजोरी में आएगा, भारत के गरीब के काम आएगा। Well, joining me from New Delhi now is our correspondent Vishal Dahiya. Vishal, you know, you're in central Delhi at the moment, in New Delhi, in the heart of Delhi, as I would call it, and it certainly seems like the entire national capital is steeped in the colors of India. Give us a sense of what the streets of Delhi look like today. Well, Frank, we've been out since almost around 7:30 a.m. in the morning. First and foremost thing is the security cover which has been put across the entire national capital. But there was a very tight security cordon in and around the Red Fort area, where the Prime Minister just a short while ago, addressed the nation and hoisted the national flag. That is because of the simple fact that there were several inputs from the intelligence agencies the security have to be kept on a very tight leash. Because of the security reasons, I cannot give you the visuals of the India Gate where I'm standing right now. We've been pushed a little inward, but there are a number of people out here at India Gate. Some of them have walked down from Red Fort after the speech got over, though it is pretty humid as far as the atmosphere is concerned. But then people, as you said rightly, are enjoying the very fact that this is the Independence Day of the country. They have national flags in their hand. Some of the youngsters are even chanting slogans. But then most important aspect out here would be that this is one day wherein everyone, despite their political differences, despite their ideological differences, come together and celebrate the independence of India. You know, talking about security, of course, in an unprecedented move in the ramparts of the Red Fort, we saw Prime Minister Narendra Modi going out and meeting the crowd, meeting the children and several others who were present there. That would have definitely caused a scare or some palpitations there for the security agencies looking after the Prime Minister's security. Well, obviously, going by the security protocol, this is something which would definitely have been a cause of concern for the security agencies, specifically the Special Protection Group, which guards the Prime Minister. But then we've seen with this Prime Minister, Narendra Modi, for almost, 14, 15 months now, there have been several public events, be it the Independence Day, even the Yoga Day, which was, conducted on 21st of June on the lawns of Rajpath. There also, he, after the speech, he walked down to the crowd, participated in that, yoga demonstration for almost 20-25 minutes and mingled with the crowd as well. So obviously, as far as the Prime Minister is concerned, it seems he's pretty much at ease, being in the crowd, speaking to the people, getting clicked with the people. But then from security point of view, this is definitely a cause of concern. But then going by the high, safety rather tough safety network and high safety standards which have been put across the nation, specifically the national capital and the Special Protection Group, which guards the Prime Minister. This is something which it seems those who are protecting him have taken in their stride. All right, Vishal Dahiya, we'll have to leave to that. Thank you so much for joining us with that update there from Delhi. Now, another ambitious government scheme that found mention in the Prime Minister's speech was the Jan Dhan Yojana that aims to ensure financial inclusion of all. Talking about the success of the scheme so far, the Prime Minister said that it has opened the doors of banks for the poor of the country. Let's listen in to what the Prime Minister had to say. मेरे देशवासियों, मैं आज गर्व से कहता हूं कि हमने समय सीमा में काम पूरा किया। 17 करोड़ लोगों ने
प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर खाते खुलवाए। और इस वक्त हमारे संवाददाता श्याम सुंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, प्रधानमंत्री ने आज पूरे देश को एक टीम इंडिया कहा है, लेकिन ये टीम इंडिया यानी कि जो देशवासी हैं, इनका क्या रिएक्शन है प्रधानमंत्री की स्पीच पर? देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, उनके भाषण देने का अपना अंदाज है और वो हर अपने भाषण में शब्दों का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही क्रिएटिव तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं। और आज उन्होंने जिस तरह से पूरे देश को 125 करोड़ की आबादी को टीम इंडिया का नारा दिया और उन्होंने अपने भाषण में बार बार कहा, भाषण की शुरुआत में कहा कि गवर्नेंस में जब तक लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने ये लगातार कदम उठाए हैं कि लोगों का फीडबैक उनको लगातार मिलता रहे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इंटरनेट पर उपलब्ध है, जहां पर लोगों के सुझाव आते हैं। उन्होंने कहा वो मन की बात करते हैं लोगों से सीधा रेडियो के माध्यम से, और इसके अलावा उन्हें पत्रों के माध्यम से भी लोगों के सुझाव मिलते हैं। और जहां तक लोगों का सवाल है, लोगों की हमेशा अपेक्षा होती है कि जब लाल किले से प्रधानमंत्री बोलते हैं तो वो न सिर्फ अपने पिछले 1 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हैं, बल्कि आगे उस सरकार के क्या लक्ष्य होंगे वो भी सामने रखते हैं। तो जाहिर है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में पिछले 1 साल में जनधन योजना की बात करें या फिर जो बैंकों को जिस तरह से उन्होंने कहा है कि बैंक गरीबों को लोन दें, दलितों को लोन दें, आदिवासियों को लोन दें, वो सारी बातें की। उन्होंने किसानों की बातें की, उन्होंने नौजवानों की बातें की। तो एक तरह से समाज के हर वर्ग को उन्होंने छूने की कोशिश की और उन्होंने एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत देने का वायदा भी किया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि चुनौतियां हैं और उन्होंने कहा लेकिन उन चुनौतियों के सामने वो झुकेंगे नहीं और उन्होंने जो वायदा किया है भ्रष्टाचार मुक्त भारत देने का, तो वो उस वायदे पर कायम रहेंगे, चाहे उसके लिए उनको कितना भी अवरोध झेलना पड़े। तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चाहे चुनाव के वक्त से अगर आप उनके भाषण देखें और पिछली बार जो लाल किले पर भाषण दिया था और आज भाषण दिया था, बहुत अपेक्षाएं वो पैदा करते हैं, बहुत अपेक्षाएं जगाते हैं। और जाहिर है जब अपेक्षाएं होती हैं तो लोगों की बहुत अपेक्षाएं बढ़ती हैं और वैसे में सरकार के ऊपर प्रदर्शन का दबाव उतना ही ज्यादा होता है। चलिए, प्रदर्शन का दबाव जाहिर तौर पर होगा और किस तरह से उनकी उम्मीदों पर खरा उतरता है न सिर्फ ये मुल्क बल्कि पूरी सरकार, ये भी देखना होगा। प्रणव गोस्वामी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणव, कोई अपडेट? क्या केजरीवाल पहुंचे अभी? देखिए, थोड़ी देर में यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचेंगे। हालांकि उनका जो समय है वो 10:30 बजे का आने का है, तो इसलिए उम्मीद की जा रही है थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर जो राष्ट्रीय ध्वज है उनको फहराया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जो स्कूली बच्चे हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और इस तरह से तमाम पूरे जो मुल्क है लौटेंगे आपके पास। प्रणव, फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव। और दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में किस तरह से तमाम हलके जो हैं वो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। ये तस्वीरें हैं कांग्रेस मुख्यालय की, जहां पर अब से कुछ देर पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ध्वजारोहण किया, सलामी ली। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्षा आज लाल किले की प्राचीर पर भी नजर आई थी, जहां पर मुख्य समारोह था, वहां पर भी वो शरीक हुई और उसके बाद वो पहुंची कांग्रेस मुख्यालय और उन्होंने वहां पर झंडारोहण किया। उनके साथ तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, मोतीलाल वोरा, जनार्दन द्विवेदी, ये सभी लोग मौजूद थे। आज पॉलिटिक्स का दिन नहीं है, सबको बधाई। और ये थे राहुल गांधी, जिन्होंने कहा कि आज पॉलिटिक्स का दिन नहीं है, सभी को बधाई दी उन्होंने। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ध्वजारोहण किया और आज़ादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को उन्होंने याद किया। आयोजित इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाई और बहन 69 साल का ये सफर आज देश फिर से एक बार कृत संकल्प होकर आगे की मंजिल को काटने के लिए कटिबद्ध हुआ है। उस वक्त हम सब आज
अपने आप को फिर से एक बार अपने राष्ट्र को पुनर्समर्पित करें। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने क्या कुछ कहा आज के दिन, ये भी सुन लेते हैं। संकल्प में भी दृढ़ता का भाव अधिक था और मैं विश्वास करता हूं कि उसके अनुरूप जैसे जैसे लोग देश में परिवर्तन देखते रहेंगे, वैसे वैसे राष्ट्र के भविष्य के बारे में भी उनके मन में जो आशाएं जगी है वे अधिक सुदृढ़ होंगी। और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी झंडारोहण किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ध्वजारोहण किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ध्वजारोहण करते हुए लखनऊ में, ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की हैं जब उन्होंने ध्वजारोहण किया और सलामी ली। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आज ध्वज फहराया, राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सलामी लिया। ये आपको दिखाते हैं उस वक्त की तस्वीरें। कर रहे हैं, अभी और आगे जाना है। तो आज का दिन यह संकल्प लेने का है कि विकास के रास्ते पर और खासकर न्याय के साथ विकास के रास्ते पर जो हम बढ़ चले हैं, आगे हम बढ़ते रहेंगे। तो कोशिश हमारी यही है कि मुख्तलिफ जो राज्य हैं उनमें किस तरह से आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है उसकी तस्वीरें आप तक लाएं। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश का रुख करते हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज़ादी के पर्व पर लोगों को बधाई दी और कहा कि देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और हर नागरिक मध्य प्रदेश को भी उसी तेजी से विकसित करने का कर्तव्य निभाए, ये उन्होंने अपील की। हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, प्रदेश को भी उसी तेजी से आगे बढ़ाने में अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करें और अपने प्रदेश को, जो अब अग्रपांक्ति के विकसित राज्यों की जमात में शामिल है, प्रगति और विकास में अपनी तरफ से कोई कसर न छोड़ें। चलते हैं हरियाणा, जहां पर लोगों ने आज़ादी का जश्न मनाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने झंडा फहराया और सभी को बधाई दी। हम धन्य हैं कि हम उस हरियाणा के वासी हैं जिनके जीवट जवान और कर्मठ किसान भारतवर्ष की अनूठी पहचान हैं। हरियाणा के लोग मातृभूमि की आज़ादी के लिए सर्वस्व कुर्बान करने में हमेशा आगे रहे और अब राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की रक्षा के लिए बलिदान देने में भी अग्रणी हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी झंडा फहराया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई में झंडा फहराते हुए, हमने सुबह दर्शकों को तस्वीरें दिखाई थी कि मुंबई की अलग अलग जगहों पर किस तरह से लोग जश्न में डूबे हुए हैं। तमाम जो बिल्डिंग्स हैं उनको तिरंगा कर दिया गया था, यानी कि तीनों रंगों से उनको रंग दिया गया था और ये इसकी तैयारियां बाकायदा पहले से ही की जा रही थी। और आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने झंडारोहण किया, सलामी ली और लोगों को संबोधित भी किया। तो तमाम राज्यों में आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने झंडे फहराए, लोगों को संबोधित किया, लोगों के साथ साझा हुए, अपने विचारों को रखा, बधाई दी और ये सिलसिला पूरे देश में जारी है। और उम्मीद यही की जा रही है कि आज का दिन पूरा देश आज़ादी के जश्न में सराबोर रहेगा। तो पूरे देश में जश्न आज़ादी का माहौल है फ्रैंक, लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों ने जिस टकटकी भरी नज़रों से जो टकटकी लगाए देखे रहे सुबह से, वो था प्रधानमंत्री का भाषण।
Indeed, all eyes were on the Prime Minister, just like last year on August 15, 2014. This year as well, all eyes were on the Prime Minister, where he delivered an 85-minute-long speech addressing the nation, of course, talking about the report card of the last 1 year, and also announcing not as many schemes as last year, but announcing a few schemes and what the nation could possibly see in the next 1 year. Let's listen in to some of those reactions coming through from the Prime Minister of India, Narendra Modi. 20-20, 25-25 साल से लटकी हुई समस्या का हमने रास्ता खोज रहा है। मुझे विश्वास है कि जिस विश्वास के साथ वार्ता चल रही है, मैं सुखद परिणाम की आशा करता हूं। और इसलिए मैं फिर एक बार विश्वास दिलाता हूं कि सिद्धांतः इस सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन की बात को स्वीकार किया है। उसकी नीति गीटी को देख करके लागू कैसे किया जाए, उसके लिए संबंधित लोगों से बातचीत करते हुए हमारी बात को आगे हम बढ़ा रहे हैं। Well, let's now cut across live to Goa, where the Chief Minister is participating in Independence Day formalities. Well, those visuals, of course, coming to you from Goa, where the Chief Minister, Lakshmikant Parsekar, in fact, just saluted the flag and took part in Independence Day celebrations. The last visuals, of course, on the screens, these visuals coming to you from Delhi, where the Chief Minister, Arun Kejriwal, seems to have arrived there at the place where the ceremonies are going on, and he's taking part in the ceremonies. Let's listen in. चलिए, उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक हर कोई रंगा हुआ है जश्न आज़ादी के रंगों में। और जैसा हमारा संवाददाता विशाल दहिया बता रहे थे कुछ देर पहले कि दिल्ली में उमस बहुत है सुबह से, लेकिन इसका फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, जश्न आज़ादी में डूबे हुए हैं। और ये सुबह का जो चंक था उसमें भाषणों का दौर चला, फ्लैग होइस्टिंग हुई, लेकिन असल जो जश्न होगा
देश की सड़कों पर, वो फ्रैंक अब से कुछ देर बाद शुरू होगा और शाम तक जारी रहेगा। हाँ, शाम तक जारी रहेगा and it will indeed be a day filled with color, day filled with excitement and day filled most of all with a lot of patriotism. With that, of course, it's a wrap from both Deepak and I, Frank Pereira. Thank you so much for watching, and on behalf of our entire crew here at Rajya Sabha Television, we wish you a very happy and Independence Day. बहुत बहुत शुक्रिया।